Welcome friends, welcome to my YouTube channel Eco Tutorials. Continuing with our series of lecture on plus one economics. Today's lecture covers a very important topic for CBSE economics, that is indifference curve analysis. Okay, now you know that you have done two approaches to measurement of utility. One is cardinal, which says the utility is measurable in cardinal numbers 1, 2, 3 up to infinity, and unit given was. The second concept is ordinal concept. Ordinal concept. Now what is this ordinal concept? The consumer ranks his preferences. ये मेरी पहली preference है, ये दूसरी है, तीसरी है, and he can easily compare first with second, second with third. So instead of measuring, they say it is not possible to calculate the utility of a commodity, to measure the utility of a commodity, because it is a psychological entity concerned with mental satisfaction. तो एक mental satisfaction को आप weight कैसे दोगे? 2 util, 3 util, 4? Physically only on theory, on paper. What they say, realistic thing is that you compare, you rank your preference and you compare. That is the ordinal concept. Now the topic of today, that is indifference curve analysis. This is in fact based on this ordinal concept of utility. You're getting my point? कि ये जो concept है वो ordinal concept of utility पर based है. Let me remind you, we are recording live in the classroom, so there may be some stopping. The students may ask me any question. Okay, continuing with our lecture, ordinal concept, indifference curve analysis we are doing. The first thing is that who has given this concept, indifference curve? This was given by an economist named Edgeworth. In fact, if I remember, the name of the book was Mathematical Psychs. Okay, but the detailed description was given by J.R. Hicks and Allen. In fact, both of them wrote an article. Article was a reconsideration of theory of value. Okay, in this the initial description of indifference curve analysis, they gave initial description of indifference curve, but the detailed description was given by J.R. Hicks in his book Value and Capital. ठीक है, तो आपने जो याद रखना वो ये वैल्यू एंड कैपिटल, इंडिफरेंस कर्व इस बुक में आया. देखो क्या लिखा है हमने, लेट अस सी. कहता है द थ्योरी ऑफ इंडिफरेंस कर्व वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय फ्रांसिस जेसिड्रो एजवर्थ, who explained in 1881, but the detailed analysis of indifference curve was given by Hicks and Allen in their book Value and Capital. ठीक है, और ये जो एजवर्थ था, इसने मैथमेटिकल साइक्स नाम की एक बुक थी, उसमें ये. लेकिन वी आर मोर कंसर्न विद दिस J.R. हिक्स. और अगर आपसे पूछे ऑप्शंस में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, देखो आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या दोनों नाम हैं एजवर्थ, हिक्स एंड एलन. In that case, you will choose Edgeworth. Okay, but if Edgeworth is missing, then sure that it is Hicks and Allen. You're getting my point. So this is usually this concept is associated with Hicks and Allen. Now what is indifference curve? देखो बहुत सिंपल, मेरी वर्डिंग को मैं बहुत स्लो बोलूंगा. कहता है इंडिफरेंस कर्व इज ए कर्व. इस तरह का एक कर्व बनाऊंगा मैं, नेगेटिवली स्लोपिंग. ये कर्व है इंडिफरेंस कर्व. इज ए कर्व एवरी पॉइंट ऑन विच डिनोट्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. टू गुड्स कौन से हैं? एक ये एक्स गुड, एक वाई गुड. एवरी पॉइंट ऑन इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई. इसमें मैं कॉम्बिनेशन कहीं ले लेता हूं, ए बी सी
डी। इसमें और भी n नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। एवरी पॉइंट ऑन दिस कर्व इंडिकेट्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स x एंड y विच गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। ये देखो, ये मेन है, कहता है इंडिफरेंस कर्व इज ए कर्व विच शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। पहला पॉइंट तो आ गया, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, समझ आती। सेकेंड पॉइंट, every point on this indifference curve give equal satisfaction. Combination give equal satisfaction, या मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं, satisfaction from A is equal to B is equal to C is equal to D। बनती बात? Yes. Then third कहता है since every combination is giving equal satisfaction, the consumer is indifferent between them। 3 पॉइंट आ गए, क्या क्या? यस, combination of two goods, equal satisfaction, indifferent। indifferent का मतलब उसको it doesn't matter to him whether you give him A, B, C or, is it clear? He just wants to get maximum. He is supposed to get maximum. Of course, here we are saying every point on this, I will tell you with the help of indifference curve where he gets maximum satisfaction. That will be our subject matter of consumer equilibrium. Consumer equilibrium we will be doing with two concepts, utility and ordinal concept. Okay, cardinal and ordinal concept. Here we are saying it's a curve which shows combination of two goods which give equal satisfaction. Therefore, the consumer is indifferent. Clear? Then next, अब इसको मेरे ख्याल से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। इंडिफरेंस कर्व इज ए कर्व दैट रिप्रेजेंट ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट गिव्स द सेम सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। सिंस ऑल द कॉम्बिनेशन गिव सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, द कंज्यूमर प्रेफर्स देम इक्वली और कंज्यूमर इज इंडिफरेंट बिटवीन देम, हेंस द नेम। देखो, ये जो स्लाइड्स बनी हैं वो इस हिसाब से बनी हैं कि अगर एक बार पढ़ लो तो एक इनफैक्ट पूरी थ्योरी आपके सामने आ जाती है। ठीक है, नो इफ्स एंड बट्स, सारा कुछ इसमें आपको आ जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा इन स्लाइड्स को बड़े प्यार से, ध्यान से आपको पढ़ना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज अजम्पशंस ऑफ। नाउ देखो, इसकी अजम्पशंस क्या हैं। नंबर 1 तो वही हो गया, क्या? इट इज ए ऑर्डिनल। अब मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं, व्हाट इज दिस ऑर्डिनल कंसेप्ट, गॉट इट। देन सेकेंड वन इज मनी इनकम। देखो, ये यूजुअल आपको पता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, सेटरस पेरिबस तो होता ही होता है। अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। क्या क्या माना? मनी इनकम कांस्टेंट, कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन टू कमोडिटीज विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर ईच अदर, कि दो गुड्स ही हैं इसलिए सारी इनकम यही स्पेंड करता है। कंज्यूमर इज रैशनल, प्राइस ऑफ गुड इज कांस्टेंट। ये सारी अजम्पशन सारा चलती हैं। एक ट्रांसिटिविटी की अजम्पशन आती है, ट्रांसिटिविटी। नो व्हाट इज दिस ट्रांसिटिविटी? देखो, ये भी देख लो, ये इवन यूटिलिटी एनालिसिस में भी चलती है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, देयरफॉर ए इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रांसिटिविटी। अब देखो, अब ये मैंने यहाँ नहीं लिखी हुई, तो जब आप ये स्लाइड देखोगे तो ये अजम्पशन यहाँ पर आ गई। दोनों चीजें आप ध्यान से देखो, इसीलिए मैंने बोर्ड को डिवाइड किया हुआ। यहाँ थोड़ा सा और कॉम्प्रिहेंसिव हम जाएंगे, यहाँ है, नोट्स हैं, सारे हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और फैलाएंगे। आई होप ऑल द assumptions आर क्लियर। देन नेक्स्ट पार्ट। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज assumptions हो गया। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस का। ना सबसे पहले तो हम टेबल बनाएंगे। देखो, कॉम्बिनेशंस ए, समझो? फिर मैं लेता हूँ एक्स गुड एंड वाई गुड, गॉट इट। एक्स मैंने लिए 10, या यहाँ जैसे इसको एक जैसा रखने के लिए मैं यही लेता हूँ जो वैल्यूज वहाँ ली हैं। अदरवाइज ले कुछ भी सकते हो। 1 2 3, इधर ले रहा हूँ 10 3,
10 में से 3 7, फिर 2 5, फिर 4। आगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये DMRS, दिस इज डिमिनिशिंग वेरी गुड मार्जिनल रेट ऑफ। इसका मतलब ये है कि हमारा पहला लेक्चर काम किया हुआ है। तो इसमें व्हाट इज दिस डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि जैसे जैसे आप x को बढ़ा रहे हो यू आर सेक्रीफाइसिंग y, बट एट व्हाट रेट? 1:3, 1:2, 1:1, कि वो सेक्रीफाइस की रेशो कम। और मैंने आपको बताया था कि ये सेक्रीफाइस की रेशो क्यों कम होती है, इसलिए कम होती है कि जैसे जैसे कोई चीज़ कम होती जाती है आपकी उसके लिए यूटिलिटी, आपकी उसके लिए सेटिस्फेक्शन, आप उसको सेक्रीफाइस करने की इच्छा आपकी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज DMRS। अब इसको अगर मैं डायग्राम बनाऊं, अच्छा ये डायग्राम आपको प्लॉट करना पड़ेगा। आपको बता दूं, या नहीं भी प्लॉट करो तो ये बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। जैसे ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ, y x, इसमें एक चीज बिल्कुल करेक्ट नहीं दिखेगी तो मेरा डायग्राम गलत हो जाएगा। एंड 10, ठीक है। पहला क्या 10 and 1, फिर है 7 and 2, 5 and 3, 4 and, अब ये एंड पॉइंट्स मैंने ज्वाइन किए, इसको मैं कहता हूं इंडिफरेंस कर्व। दिस इज नेगेटिवली स्लोपिंग IC। IC मीन्स इंडिफरेंस कर्व, लेकिन मैं यहां नहीं रुकूंगा। नेगेटिवली स्लोपिंग IC बेस्ड ऑन, यस ये वर्डिंग मेरे को चाहिए, बेस्ड ऑन DMRS। अब इसमें देखो डायग्राम में देखो, यहां पर हमने 3 यूनिट्स छोड़े हैं, 3, फिर कितने छोड़े? 2, फिर कितने छोड़े? 1। यहां सब पे एक एक बढ़ा रहे हो, इसको मैं डेल्टा लिख सकता हूं, डेल्टा चेंज, ठीक है ना? क्लियर है बिल्कुल? कि पहले 3 छोड़ रहा हूं, फिर 2 छोड़ रहा हूं, फिर 1 छोड़ रहा हूं। ये डायग्राम में दिख रहा है। देखो मैं क्या कहता हूं, ये समझ आ गया कि सारे कॉम्बिनेशन, अब ये कॉम्बिनेशन था इसमें A B C एंड D, सारे कॉम्बिनेशन, ये और भी आ सकते हैं, सारे इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं, इसलिए कंज्यूमर इंडिफरेंट है। इट डजेंट मैटर टू हिम वेदर यू गिव हिम A और B और, यू आर गेटिंग माय पॉइंट? देन देखो इसमें मैं ये बताता हूँ कि क्या करते हैं बच्चे। देखो कि इसको परवाह किए बगैर ये इंडिफरेंस कर्व वैसा बना दिया, ये लो जी, ये इंडिफरेंस कर्व बन गया। नाउ दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये कांस्टेंट दिखा रहा है, ठीक है। ये DMRS इज कांस्टेंट, तो ये शेप नहीं हो सकती, ठीक है। इसी तरह अगर ये बना कन्वेक्स, अगर मैं इसको कनकेव बना दूं ऐसे, ये वैसे प्रॉपर्टीज में करने वाली बात है, तो ये दिखाएगा। पहले सैक्रिफाइस कम, फिर सैक्रिफाइस अगेन। ये होती है कांस्टेंट MRS, D तो डिमिनिशिंग के लिए, और यहाँ इंक्रीजिंग MR। इनफैक्ट इसको प्रॉपर्टी भी बना सकते हो, एक है प्रॉपर्टी है, लेकिन जस्ट मैंने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि आपके डायग्राम में वो डिमिनिशिंग चीज दिखनी चाहिए, नहीं दिखेगी तो गलत है। अब इस डायग्राम को देख लो, देखो इसमें बिल्कुल क्लियर बना हुआ 3 2 1, ब्यूटीफुल डायग्राम। मैंने क्या कहा, स्लाइड्स पूरी हैं, लेकिन साथ में ये देखना एडिशन समझने के लिए जरूरी है। यू आर गेटिंग? अब इसके बाद देखो, इसके बाद एक पॉइंट आएगा मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। आपको ये भी बता दूं, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, देखते हैं।
मैप आ गया सीधा ही। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस होता है यू प्रेफर मोर टू लेस, सिंपल। ठीक है कि आपकी प्रेफरेंस बिल्कुल क्लियर है, यू प्रेफर मोर टू लेस। समझो, एक नंबर में पूछा जा सकता है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। नाउ दिस इज इंडिफरेंस मैप। अब ये इंडिफरेंस मैप क्या, मैंने 3 कर्व्स बने हुए हैं इसमें, IC1, IC2, IC। कहता है इंडिफरेंस मैप शोज ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व वेयर एवरी हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन देन लोअर। ठीक है, इसमें मैं क्या कहूंगा, सेटिस्फेक्शन फ्रॉम IC3 ग्रेटर देन IC2 ग्रेटर देन IC1। जैसे जैसे ऊपर जाते, इसको आगे जाके प्रॉपर्टी को अभी हम प्रूव भी करेंगे। You're getting my point? ठीक है कि इंडिफरेंस मैप क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस का जहाँ एवरी हायर इंडिफरेंस का गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन। इज इट क्लियर? यस। हाँ ठीक है। देन नेक्स्ट अब हम शुरू होते हैं प्रॉपर्टीज से, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस का। अच्छा अब देखो एक चीज आपको बता दूं, आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि आप सारी प्रॉपर्टीज 6 नंबर में शायद पूछ ले 2-3 प्रॉपर्टीज, वो भी बहुत सारी प्रॉपर्टी, इनफैक्ट इन टोटल 9-10 प्रॉपर्टीज हैं, हम +1 में 5-6 करते हैं, बहुत प्रॉपर्टीज हैं इसकी। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? हमने बेसिकली आप बुक में भी आप देखो 3-4 प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। मेरी कहने का मतलब ये हर प्रॉपर्टी इंडिविजुअल 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, और 3-4 प्रॉपर्टीज बना ले तो 6 नंबर का बन जाता है। तो ये मत समझना, जब नोट्स भी दिए होंगे तो नोट्स में आपको मैंने एक ही जगह पे इंडिफरेंस का की प्रॉपर्टी, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। +1 में वो क्या करेगा, कोई एक प्रॉपर्टी कह देगा इसको प्रूव करो। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अब देखो पहली प्रॉपर्टी है डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये आपने अभी किया है कि बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन DMRS इट इज नेगेटिवली स्लोपिंग। देखो वही है 3, 2, 1। ठीक है कि बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन कि जैसे जैसे मैं x को बढ़ाऊंगा y का सेक्रीफाइस करूंगा। IC नेगेटिवली स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट बिकॉज ऑफ DMRS। ये लिखो नेगेटिवली स्लोपिंग इंडिफरेंस कर्व। ये जब मैं डायग्राम बनाऊं मेरे को ये लिखना बहुत जरूरी है, इसी से क्लियर होता है कि नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब होता है एक बढ़ा रहा हूं तो दूसरा। ठीक है, स्लोप्स आपको बताए थे मैंने, एक तो ये बता दिया, ये एक ये है ना, एक ये होता है नेगेटिव और ये होता है पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब ये 2 वेरिएबल्स ऑपोजिट चल रहे हैं, और इसका मतलब होता है ये 2 वेरिएबल्स। तो मैंने आपको पहले दिन कहा था कि इकोनॉमिक्स में डायग्राम देखते ही पता चल जाता है कि मीनिंग क्या निकल रहा है ना। अब इसका नेगेटिव देखते ही मतलब चलता है कि ये दोनों इनवर्स चल रहे हैं, एक बढ़ रहा है तो दूसरा। लेकिन मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि कैसे बढ़ रहा है, कम हो रहा है। वो कहता है जैसे जैसे x को बढ़ा रहा हूं y कम हो रहा है बट एट डिक्रीजिंग रेट। इट इज बेस्ड ऑन DMRS। ये पहली प्रॉपर्टी है। यस। देखो क्या लिखा है, एन इंडिफरेंस कर्व slopes downward from left to right because they are based on diminishing marginal rate of, it means as the consumer consume more and more of one good he sacrifices other at एकदम कंप्लीट। नीचे आप लिख सकते हो कि ये 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन, ये जरूर लिख दो, या नीचे डायग्राम बना के लिख दो 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 फॉर y, है ना। एकदम क्लियर, बेस्ड ऑन DMRS। तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर है, इज इट? पक्का? पक्का। चलो ये आगे। अब इसके बाद हम आते हैं, ये अगली प्रॉपर्टी है हायर IC गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन देन लोअर। फ्रेंड्स देखो इसको, ये तो बता दिए इंडिफरेंस मैप में कि हायर जो है लोअर से ज़्यादा देती है। अब इसको मैंने प्रूव करना है।
आपको जो नोट्स दिए हैं उसमें प्रूव किया हुआ है। वो कैसे, देखो मैंने, जरा ध्यान से देखना। ये मैंने ले लिया y गुड, ये ले लिया, X good. ये मैंने दो इंडिफरेंस कर्व उठा लिए, एक 2 IC IC1। IC1. अब इसमें एक ये A कॉम्बिनेशन लिया, इसमें x कितना है, ये Yes. ऑन IC एट पॉइंट A OX ऑफ x प्लस OY, है ना। Yes, sir. अब मैं इसके बिल्कुल सामने अब मैं कहता हूं एट पॉइंट B. B ऑन IC 1. 1, ये होगा OX1 प्लस OX1 प्लस 1 2 फ्रॉम 1 and 2 OX प्लस OY इज लेस देन। 2x1 OY. अभी आपने ट्रांसिटिविटी की है कि ज़्यादा को प्रेफर करोगे, तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। अब इंडिफरेंस कर्व तो कहता है कि एवरी पॉइंट गिव्स इक्वल सेटिस्फेक्शन, लेकिन यहाँ एक इंडिफरेंस कर्व पे पॉइंट नहीं है, एक लोअर पे है, एक, तो क्लियर कट प्रूव हो गया। देखो अब अगर आ जाता है दो लाइनें ऊपर लिखी कि हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन, सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन लिखनी है, 1 मिनट में क्वेश्चन बाहर, फुल मार्क्स। इसमें कुछ इनकम्प्लीट रहा ही नहीं। अब इसमें आपने लिख दिया A लेस देन B, B लाइज ऑन हायर IC, ठीक है। देयरफॉर वी कंक्लूड पॉइंट ऑन हायर IC गिव्स। आप अब नोट्स लाओगे ना तो उसमें दिखाऊंगा कि ये इसी एज इट इज जैसे मैं आपको बता रहा हूँ प्रूव किया हुआ है, नो नीड टू राइट, ठीक है। कंप्लीट फूड मिल रहा है, तो यू हैव टू ग्रास्प, यू हैव टू रीड, ठीक है। हमारी अटेम्प्ट ही यही है कि कोई चीज़ रहे ना, लेकिन नोबडी इज़ परफेक्ट। मैं बार बार कहता हूँ, आप अपनी एक्सरसाइजेस को देखो बुक्स में, उसमें कोई क्वेश्चन लगता है कि ये रह गया, तो आप ज़रूर उसको एक नोट डाउन कर लो। आपको सप्लीमेंट्री नोट्स एक तो देता हूँ जो आपके हैं, उसके अलावा सप्लीमेंट्री नोट्स भी आपको मिलेंगे। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट, two ICs cannot intersect each other, very interesting। देखो two ICs cannot intersect, अब इसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। देखो ये आजकल ये जो बोर्ड्स आ गए हैं, इनका ये फायदा है ना कि स्लाइड भी साथ में है और आप इसको आराम से देख भी सकते हो कि क्या कर रहे हैं। तो गॉन आर द डेज जब वो चौक एंड डस्टर लेके चलते थे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा कॉन्टीन्यूटी बनानी ज़्यादा आसान हो गई है, टीचर्स के लिए इजी हो गया, बच्चों के लिए समझना आसान हो। अब देखो मैं क्या कहता हूँ, मैं दो इंडिफरेंस कर्व ले लेता हूँ, 1 2, ये IC है, ये IC1 है, यहाँ लिया A B एंड C, कुछ भी ले लो। मैं कहता हूँ ऑन इंडिफरेंस कर्व IC, ये बता सेटिस्फेक्शन फ्रॉम A is equal to B, why? Because they are on same. Yes, good, because same IC, ठीक है ना। on IC1 A equal to C, फिर वही आर्ग्यूमेंट हो गया, because सेम IC, है ना। फ्रॉम 1 and 2 क्या बना, B is equal to C. yes, A equal to B and A equal to C, therefore B equal to C. which is not possible। Because it क्यों? is at higher level. बस समझ आता है। Yes. तो इसका मतलब है कि मैंने कहीं एरर किया, तभी ये रॉन्ग रिजल्ट आया। वो एरर क्या है कि मैंने दोनों कर्व्स को Intersect. Intersect. Yeah. Yes.
विच इज रॉन्ग। अब देखो इस स्लाइड को जब पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने तुम्हें क्या कहा, स्लाइड्स में ये साथ में पढ़ लोगे तो फिर तो खत्म है बुक, कोई नोट्स सब नोट्स तो इनके सामने पानी पानी की तरह जाएंगे। IC1 A equal to B, points on same IC A equal to C, A equal to B, A equal to C, जो यहाँ लिखा है B equal to C, result is wrong। बात बनती है। Then next, yes, that is IC cannot touch either of the axis। ये तो सिंपल है, कहता है एक को मैंने y एक्सेस को टच कर दिया, एक को। अब क्या हुआ देखो, जब मैंने इसको y एक्सेस पे टच किया, इस पे ये ले लिया, y गुड x गुड, एट पॉइंट n o n of y plus 0 of x, which is wrong because IC must show combination of Two goods. यहां पर सिर्फ एक गुड को दिखा रहा है। क्यों गलत रिजल्ट आया? बिकॉज आई हैव। और फिर अगर मैं इसको टच कर देता हूं तो बात यह है कि इट इज शोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली एक्स। हाँ ओनली एक्स, ठीक है ना। एक्स की तो ये यूनिट्स दिखा रहा है, like in y0 again shows combination of, again wrong है। इजी है Very. बेटा, इजी तब है अगर आपने इसकी पहली लाइन पकड़ी है, दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ Substitution. ये इंडिफरेंस कर्व का दिल है। मैं आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अलग से एक लेक्चर भी दूंगा। एक अच्छा टीचर जो आपको पढ़ाएगा वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे बहुत स्ट्रेस देगा, उससे क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए क्या है। अब नेक्स्ट देखो, मैंने कहा 8-9 प्रॉपर्टीज हैं, आई हैव पिक्ड ओनली 5। ये IC मस्ट बी कन्वेक्स। देखो ये 3 प्रॉपर्टीज मैं कहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरसेक्ट, कैन नॉट इंटरसेक्ट, कन्वेक्स, और पहला डाउनवर्ड स्लोपिंग। पी जाओ इनको, बाकी दो तो आसान है। अब ये कहता है कन्वेक्स है, ये ऐसे। अभी इस डायग्राम पे आता हूं मैं, क्या बनाया हुआ। हम अपने इजी वे जो पहला डायग्राम बनाया था, ये IC ये बनाया था, देखो ये कहता हूं डेल्टा y, डेल्टा y1, Delta 2. डेल्टा y मस्ट बी ग्रेटर देन डेल्टा y1 मस्ट बी ग्रेटर देन Delta y2. बेस्ड ऑन, DMRS. दैट्स व्हाई इट इज कन्वेक्स। अब इस डायग्राम को देखो, मैंने सारा नहीं बनाया हुआ, सिर्फ चेंज कि पहला चेंज डेल्टा y ये है, फिर ये है, फिर ये है, Yes, sir. ये आ गया, Or Delta x1. ठीक है। Yes, sir. कि जैसे जैसे एक को बढ़ा रहा हूं दूसरे को कम कर रहा हूं, बट एट Decreasing. अगर ये ऐसे होता, ये एक स्टेप आगे जा रहे हैं, Yes, sir. ये अगर ऐसे होता स्ट्रेट लाइन तो क्या निकलता देखो। ये अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया भी वो है, constant आ जाएगी. Constant rate. हाँ जी सर. डेल्टा y, डेल्टा y1, Delta y. Equal डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा y1 इक्वल टू Delta y2. कांस्टेंट MRS. MRS, which is wrong against the assumption of Option of indifference, Indifference curve. ठीक है। देन नेक्स्ट, अगर ये कनकेव हो, डेल्टा y, डेल्टा y, डेल्टा y लेस देन Delta y. इंक्रीजिंग MRS, विच इज अगेन रॉन्ग। ये गलत, ये गलत, ये Yes, sir.
Yes, sir. तो मैंने जैसे कहा आपको रैंक करूं अगर मैं प्रॉपर्टीज को, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, अगर मेरी वोकेबलरी में देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, देन नेगेटिवली स्लोपिंग, एंड देन, They cannot. They cannot ठीक है। intersect. तो ये आपका इनिशियल आपका लेक्चर हो गया किस पे, इंडिफरेंस कर्व पे, यू आर गेटिंग। Yes. तो फ्रेंड्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बाद हम करेंगे बजट लाइन। बजट लाइन करने के बाद हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आएंगे। Yes, sir. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. So again at the end of the lecture, do subscribe my channel. We will come with these type of videos again. Thank you.